I desire, I decree, I wish with all my heart that you will understand what faith is. मैं पूरे दिल से चाहता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझे विश्वास क्या है। As long as you're operating with your five senses, you are not operating with faith. जब तक आप जो दिखता है, समझ में आता है, उसके मुताबिक जी रहे हो, आप विश्वास में नहीं जी रहे हो। Amen? Because it's the evidence of those things which are not yet in the natural. क्योंकि विश्वास उन बातों का सबूत है जो अभी शारीरिक रूप में दिखाई नहीं देती। Amen? That means even when you feel like you're sick, you are choosing to believe that you are healed. You are choosing to believe a different report than what the doctors had told you. इसका मतलब अगर किसी को बीमार महसूस भी हो रहा हो या डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में जो लिख के दिया हो उसके विरोध में जो आप मानते हो कि मैं ऐसा हूं, वो विश्वास है। What the doctors have said, it's a fact. जो डॉक्टर्स ने कहा है वो एक तथ्य है। Are you hearing me, church? Satan comes in your room. He ha. तुझे मैं बाइबल नहीं पढ़ने दूंगा. If you're that person, then you need to renew your mind. ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता कि शैतान आके आपके हाथ पकड़ लेता है। अगर होता है तो आपको मन नया करने की जरूरत है। Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? If you want to be a champion, अगर आप महारथी बनना चाहते हो then you don't have to live by your feelings. तो भावनाओं के भरोसे मत जियो। And majority of church lives by feelings. और ज्यादातर कलीसिया भावनाओं के भरोसे जिंदगी जीता है। Majority of church don't know the power of fellowship. ज्यादातर कलीसिया को संगति की क्या शक्ति है वो नहीं पता। That's why their spiritual life is like a yo-yo Christianity. इसीलिए उनकी जो आत्मिक जीवन है वो लट्टू की तरह है। Don't be a yo-yo Christian. ऐसे मसीह ना बने। Amen? You should be a believer when people see you 5 years before, you are on the mountain top. When they see you after 5 years, you are on a greater mountain top. And next 5 years, you have conquered more mountains. Amen? आप वो विश्वासी होने चाहिए हो जिसको किसी ने 5 साल पहले देखा हो तो पहाड़ी के ऊपर हो, अगले 5 साल बाद उससे बड़े पहाड़ पर जय पा चुका हो, उसके 5 साल बाद उससे बड़े पहाड़ पर जय पा चुका हो। Oh brother, God is the God of mountains and the God of valleys. ओ भाई, प्रभु पहाड़ों और खाइयों का परमेश्वर है। Who told you to go to valleys? किसने बोला खाई में जाने के लिए? Jesus said you are a city set on a mountain top. यीशु ने कहा तुम वो शहर हो जो पहाड़ के ऊपर बसाया गया है। Did he say that in summer you will be on mountain top, then on winter you will come in the valley? क्या उसने यह कहा कि गर्मियों में पहाड़ों पर और सर्दियों में खाई में रहना? Don't blame God when we don't walk by faith. परमेश्वर पे इल्जाम मत लगाओ जब हम विश्वास से नहीं जी रहे तो। God has one place for you. God has one will for you, and that is victory in every area of your life. परमेश्वर के मन में आपके लिए एक जगह है, एक स्थान है और वो है जय। Victory in every area. जय आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। Some people are like, what does God want for me? कुछ लोग पूछते हैं परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है? God wants you to thrive in every area. वो चाहता है कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उन्नति करते चले जाओ। That means you have amazing relationships with your family members. इसका मतलब आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों आपके परिवार के साथ। That means you're thriving in your finances. आपके पैसे में आप खूब सफल हों। That means you're emotionally thriving. अपनी भावनाओं में आप सफलता पाएं। You are healthy in your body. अपने शरीर में स्वस्थ हों। There is no area of defeat. कोई हार का क्षेत्र हो ही नहीं आपके आसपास। You know, God has never known defeat. आप जानते हैं परमेश्वर को हार नहीं पता क्या होती है? Yeah, God's nickname is victory. उसका घर का नाम, परमेश्वर का घर का नाम जय है। वीरू भी है, because he is brave as well. So he is Jay and Viru. तो वो जय और वीरू दोनों है। Amen. And that's why Bible says in 1 John 5:4 that everyone who is born out of God overcomes this world. God has only produced world overcomers. इसीलिए पहला यूहन्ना 5:4 में उसका वचन कहता है जिस किसी ने परमेश्वर से जन्म लिया है वो इस दुनिया पे जय पाता है। परमेश्वर ने केवल इस दुनिया पर जय पाने वालों को ही जन्म दिया है। Come on, turn to your neighbor and say, you are an overcomer. अपने पड़ोसी को बताएं तुम जयवंत हो। Me? मैं? Some people like me. कुछ लोग हैरान है मैं? Yes, you. हाँ आप। Come on, turn to your neighbor and say, you. अपने पड़ोसी से कहें आप। But I don't feel like I walk in victory. लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं जय में जीता हूँ। You don't have to feel it.
महसूस नहीं करना है। God never says feel it, He said believe it. परमेश्वर ने कभी नहीं कहा महसूस करो, उसने कहा विश्वास करो। Amen? You don't have to feel it. महसूस करने की जरूरत ही नहीं है। Do you feel your brain? अपना दिमाग महसूस होता है किसी को? You don't have to feel it. महसूस करने की चीज You नहीं है। have to believe it. मानना है बस। Okay? I always said it. God has said it. मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर ने बोल दिया है। Come on, say this after me. God has said it. परमेश्वर ने बोला है, I have believed it. मैंने मान लिया है And that settles it. और मामला खत्म। Amen? You don't need to take your opinions from Bua and Masi and Chacha and Poopa and Tao and your friends because they will mess up. आपको आसपास के लोगों की राय लेने की जरूरत नहीं है आपके बारे में कि आप कौन हो। परमेश्वर ने जो बोला है उतना ही मामला खत्म है उतने में। Amen? Let God's word be the final verdict in your life. परमेश्वर का वचन आपके जिंदगी का सबसे बड़ा अधिकारी हो आपके लिए क्या कहता है वो। If he is saying that anyone who is born from me are overcomers, then it means you are overcomers whether you feel it or you don't feel it. अगर वो कहता है जिस किसी ने मुझसे जन्म लिया है वो जयवंत है, तो आपको महसूस होता हो चाहे ना होता हो, आप जयवंत हो। Amen? Come on, say this after me. I am an overcomer. मेरे साथ बोलो मैं जयवंत हूँ। Now, if you believe it, then you will change the way you say it. अगर आप मानते हो इस बात को अपने दिल से, तो जिस तरह से कहते हो वो बदल जाएगा अपने आप। You're like, if you believe it, then there should, overcomers have an attitude. अगर आप मानते हो तो अपने आप बदल जाएगा। Faith people should have an attitude. जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनकी एक अलग ही मानसिकता होनी चाहिए। Amen? When you know your Father, you carry a victorious attitude. जब आपको पता है आपका पिता परमेश्वर है, तो आपकी जो सोच है, जो आपका जीवन जीने का तरीका है, वो जयवंत होगा। Look at how Jesus used to talk. एक बार खुद देखो यीशु कैसे बात करता था। He said, उसने कहा you are from the earth. तुम दुनिया के हो, I am from above. मैं ऊपर से हूँ। Amen? He said, you are earthly, I am heavenly. उसने कहा तुम दुनियावी हो, मैं स्वर्ग से हूँ। Look at his language. He said, I am the light of the world. उसकी भाषा देखो, कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। And then he said for us, he said, now you are the light of the world. और फिर उसने हमें कहा कि अब तुम इस जगत की ज्योति हो। And that's the most strangest thing I have seen in the church, where light is afraid of darkness. और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है जो मैंने कलीसिया में ही देखी है, केवल जहाँ पे ज्योति अंधकार से डरती है। The light is sitting in the room. जो रोशनी, जो ज्योति है, वो कमरे में बैठी हुई है। और गर्मियों में electricity cut. और लाइट चली गई गर्मी में। Light saying, Mummy! You are the light, man. Light. आप ज्योति हो Behave जगत like की। light. Know that you are light. ज्योति की तरह जियो। Amen? If God opens your eyes, अगर परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे, the demons are saying, Mummy! तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं आपको देख के This person has known his identity. कि इसको मालूम हो गया ये कौन है। Amen? Are you getting what I'm saying? Satan comes to mess up with you. You know, Delhi people say it. पता है मेरा बाप कौन है? दिल्ली के लोग बहुत बोलते हैं ऐसा, मेरा बाप कौन है, मेरे बाप को जानता है। So we need to know that. तो हमें पता होना चाहिए। You know, उर्दू में हम लोग वो बोलते हैं ना प्रार्थना, ए खुदा हमारे बाप चश्मे बदूर, क्या हुआ? Okay, so I have not started my message. Hallelujah. नहीं किया अभी। So should I start my message? संदेश शुरू करो। Okay, very nice. Hallelujah. So we live by faith. So हमें विश्वास की जिंदगी जीनी है, We walk by faith. उससे विश्वास से चलना है। Amen? You not only live by faith, walk by faith, you pray by faith. केवल विश्वास से जीना और चलना ही नहीं, लेकिन विश्वास से प्रार्थना भी Some करनी है। believers say, कुछ बिलीवर्स कहते हैं, विश्वासी कहते I've हैं, prayed. मैंने प्रार्थना की है, God doesn't hear me. प्रभु सुनता ही नहीं है। And that's the problem. यही तो दिक्कत है, Because you're not praying by faith. क्योंकि आप विश्वास से प्रार्थना नहीं कर रहे हो। Prayer without faith is time waste. बिना विश्वास की प्रार्थना समय बर्बादी है।
Jesus said in Matthew 6, he said, don't pray like the hypocrites because they think they will be heard because of their much speaking. मत्ती 6 में यीशु ने कहा ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा बड़बड़ाने से उनको सुना जाएगा. Amen. Sometimes we behave weird with God. कई बार हम बहुत ही अजीब सा व्यवहार करते हैं परमेश्वर के साथ. You don't have to say खुदावंदा 30 times in 1 minute prayer. 1 मिनट की प्रार्थना में 30 बार खुदावंदा बोलना See, जरूरी if you know he's a person, talk to him like a person. है. आप जानते हैं परमेश्वर एक व्यक्ति है, उससे आप एक व्यक्ति की तरह बात कर सकते हैं. ओ खुदावंदा खुदावंदा हम ये कहते हैं खुदावंदा कि खुदावंदा तू खुदावंदा दुनिया खोल दे खुदावंदा और खुदावंदा तू ये कर दे. If I talk to Sam like that, अगर हम आपस में से बात करें तो कैसा होगा? सैम पता क्या हुआ सैम फिर ना मैं आ रहा था सैम और सैम क्या हुआ ना सैम वहां पे बहुत ट्रैफिक था सैम और सैम से भाई क्या दिक्कत है? What is the problem? When you say Jesus, he says yes. जब आप बोलते हो यीशु तो वो सुनता है और कहता है हाँ. Amen. You are not heard because of your much speaking. ज्यादा बड़बड़ाने के कारण आपको नहीं सुना जाता है. You are heard because you are a son and you are a daughter. आपको इसलिए सुना जाता है क्योंकि आपका जो दर्जा है परमेश्वर के सामने, आप उसके बेटे हो, उसकी बेटी हो. The Bible says that the ears of God are inclined towards the prayer of the righteous. बाइबल कहती है परमेश्वर के कान धर्मी जन की प्रार्थनाओं के लिए झुके रहते हैं उसको सुनने के लिए. So today is Father's Day, so all the mom and dad, you know, if your kids are in next room, you know, you're so focused on what they are doing, their voice. जितने if माता they'll पिता cry, यहाँ हैं, सब quickly go and attend to them. जितने माता पिता हैं यहाँ सबको पता है जब आपके बच्चे बगल वाले कमरे में हो, हल्की सी आवाज को भी आप सुन लेते हो और भागते हुए जाते हो उस कमरे में क्या हो गया था. Many times some people would come to my home, कई बार लोग and मेरे घर Eliana आते and हैं Amaya are in another room, और एलियाना मैं दूसरे कमरे में खेल and रहे they are हैं saying something, and all my focus is that they won't hurt or you know they won't cry or get hurt, और जो लोग मेरे घर आए हैं वो मुझसे बात करें पर मेरा पूरा ध्यान है एलियाना माया की ओर कि उनको चोट ना लगे. and they are continuously saying something. और ये कुछ बात कर रहे हैं मुझसे और मैं कह रहा हूँ I was like, हाँ. मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ जो आप कह रहे हो. My all attention is there. मेरा पूरा ध्यान वहाँ पर बच्चों की ओर है. And if we being imperfect, और अगर हम लोग जो असिद्ध हैं फिर भी if our attention can be so much towards the cry of our children, how much more will Heavenly Father be attentive to your voice? अगर हम लोग असिद्ध होते हुए भी अपने बच्चों पे इतना ध्यान देते हैं तो कितना ज्यादा हमारा स्वर्गीय पिता जो हम बहुत अच्छा है. So how do we pray? तो हम कैसे प्रार्थना करें? We pray by faith. हम विश्वास से प्रार्थना करें. Amen. James 5:14 says, "Is there anybody sick among you? Let them call the elders of the church. Let the elder of the church anoint them in the name of the Lord, and the prayer of faith shall save this." It's not the prayer that saves the sick; it's the prayer of faith that saves the sick. और याकूब 5 और बाइबल कहती है कि क्या तुम्हें कोई बीमार है वो कलीसिया के अगुओं को अपने घर बुलाए ताकि वो तेल से अभिषेक करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, और जो विश्वास की प्रार्थना है उससे जो बीमार है वो चंगा हो जाएगा. वो केवल ये नहीं कहती प्रार्थना से बीमार चंगा होगा, वो कहती है विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा होगा. Amen. So we pray by faith. तो हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं We give by faith. और विश्वास से देते हैं. We receive by faith. विश्वास से ही हम ग्रहण करते हैं. Amen. Anything in the kingdom, you do it by faith. जो कुछ हम राज्य में करें वो विश्वास से ही कर सकते हैं. If you're not doing it by faith, अगर विश्वास से नहीं करते it's a Christian ritual. तो वो एक ईसाई रीति रिवाज है. If you take communion without faith, अगर बिना विश्वास के कोई प्रभु भोज ले powerless. तो उसमें कोई शक्ति नहीं है. If you take baptism without faith, बपतिस्मा बिना विश्वास के Christian ritual. ईसाइयों का रीति रिवाज है. If you pray without faith, बिना विश्वास के प्रार्थना करें you are a clanging cymbal. तो आप केवल आवाज करती हुई If you read the Bible without faith, अगर आप बाइबल बिना विश्वास के पढ़े it will just make you religious. वो केवल आपको धार्मिक बना But if देगा. you add faith into it, लेकिन अगर इन सब बातों में विश्वास मिला दे the same thing becomes so powerful. यही सारी बातें इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं. Because the Bible says, just shall live by faith. क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहें. Amen. And specifically when you are in Delhi, खासकर जब आप दिल्ली में रहते हो, hallelujah, for the air is so pure here. क्योंकि यहाँ की हवा इतनी साफ है. Just shall live by faith. धर्मी जन दिल्ली में तो विश्वास से ही जिंदा रह सकता है. Amen. When all the vegetables and all the, you know, it's like pesticides and
all the chemicals. जब सब सब्जियों में सारे केमिकल डाले हुए हैं, पेस्टिसाइड्स डाले हुए हैं। मेरे एक फ्रेंड ने बताया, उसने ना उन्होंने रात में एक लौकी ली होगी, सो लौकी उन्होंने फ्रिज के अंदर रखी, तो पावर लौकी सुबह आधे किलो की बन गई, बिकॉज there was pesticides and all the growth hormones. Even the chickens, इतना सा चिकन है उसमें स्टेरॉइड डालेंगे, 2 किलो का चिकन बना गया, and all you're eating is that. तो जो कुछ आप खा रहे हैं उसमें ये सब है। But some Christians say, no, आज के बाद हम चिकन नहीं खाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ मसीह लोग फिर कहते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे। हवा भी खाओगे तो मर जाओगे, दिल्ली की हवा भी वैसी है, क्या क्या नहीं खाओगे और क्या क्या खाओगे। Amen. So there is only way to live, that is living by faith. केवल एक ही तरीका है जीने का, वो है विश्वास से। Amen. Bible says these signs will follow them that believe, even if they drink any deadly thing, it shall not harm them. बाइबल कहती है विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि अगर वो कोई जहरीली वस्तु भी पी ले उनको कोई हानि ना होगी। Amen. That's why I drink so much Coke. इसीलिए मैं इतनी कोक पीता हूँ। Okay. Hallelujah. So Hebrews 11:1. इब्रानी 11 उसका 1। Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Now you have to understand something. आपको इस बात को समझना है, If there is anything that you can perceive with your natural senses, faith cannot be involved there. अगर आप किसी भी बात को अपनी 5 इंद्रियों से शारीरिक रूप से परख सकते हैं, जान सकते हैं, तो उसमें विश्वास नहीं मिला सकते, उसकी आवश्यकता नहीं विश्वास की। Faith is beyond your senses. विश्वास आपकी ज्ञानेंद्रियों से जो नहीं परखा जा सकता, जाना जा सकता, उससे आगे And इस्तेमाल किया that's जाता why people don't understand why they don't receive anything from God. है। और इसीलिए लोग नहीं समझते कि वो परमेश्वर से कुछ हासिल क्यों नहीं करते। So when they are sick, तो जब वो बीमार होते हैं, they will say, when I can see the healing with my 5 senses, then I'll believe I'm healed. जब वो बीमार होते हैं तो कहते हैं जब मुझे अपने 5 इंद्रियों से पता लग जाएगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, तब मैं मान लूंगा कि मैं ठीक हूँ। Because I can feel the pain, क्योंकि मैं अभी दर्द को महसूस कर रहा हूँ, I can see the growth, मैं वो गांठ को देख रहा हूँ, I can touch it and feel it, it's the same. मैं उस दिक्कत को छू के देख सकता हूँ, अभी भी है। That tells us we are not operating by faith. यही बताता है कि हम अभी विश्वास को इस्तेमाल नहीं Because कर रहे। faith is the evidence of things not seen. क्योंकि विश्वास उन बातों का सबूत है जो दिख नहीं रही मुझे। That means इसका मतलब when you see nothing जब आपको कुछ नहीं दिख रहा and still you believe that you are healed, और फिर भी आप ये मानते हो कि आप चंगे हो चुके हो, then the healing will manifest in your body. तब चंगाई आपके शरीर में नजर आएगी। That means इसका मतलब you have to believe you are healed first and then you will see the manifestation. आपको पहले ये मानना है कि आप चंगे हो और तब अपने शरीर में वो बात नजर आएगी। Even though you are seeing the growth, चाहे वो आपको गांठ दिख रही हो, even though you are feeling the pain, चाहे वो दर्द महसूस हो रहा हो, even your senses are screaming that you are sick, चाहे आपकी ज्ञानेंद्रियां चिल्ला रही हो कि तू बीमार है, you went to doctor आप डॉक्टर के पास गए and doctor gave you 6 months to live और डॉक्टर ने 6 महीने बोल दिया कि 6 महीने जिंदा रहने के लिए, because they found some cancer in somebody's body. क्योंकि उसको किसी के शरीर में कैंसर दिखा रिपोर्ट में। Now that somebody अब वो जो भी है with his 5 senses अपने ज्ञानेंद्रियों से can see the report रिपोर्ट पढ़ सकता है, Can देख read सकता the है, report उसको देख सकता है, पढ़ and can सकता see है, the growth. और देख सकता है क्या है उसमें दिक्कत। But the Bible says there is one more report, लेकिन बाइबल ये कहती है कि एक और रिपोर्ट है, and that is the report of the Lord. और प्रभु की रिपोर्ट है वो जो उसने दी आपके लिए। But this report cannot be seen with your 5 senses. लेकिन जो प्रभु ने रिपोर्ट आपके लिए लिखी है वो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं पढ़ सकते, That only has to be believed. वो केवल विश्वास से ही पढ़ी जाएगी। And that's why in the book of Isaiah, इसीलिए यशाया की पुस्तक में Bible says, who has believed our report? बाइबल कहती है, सवाल पूछते हैं कि किसने हमारी बात को माना है। You know, God is so grieved. He's saying they have a report from doctor, but I also have a report for them. परमेश्वर शोकित है, इस बात से दुखी है। वो कहता है डॉक्टर से इनको एक रिपोर्ट मिली है, लेकिन मेरी रिपोर्ट तो देखो। That report says they will die in 6 months, but my report says that they will live a long life. डॉक्टर की रिपोर्ट इनको कहती है कि 6 महीने में मर जाएंगे, लेकिन मेरी रिपोर्ट में लिखा है कि ये लंबी जिंदगी जिएंगे। And he's saying, who has believed our report? और वो ये सवाल करता है कि किसने मेरी रिपोर्ट पे भरोसा किया है। Because there are very few people that believe the report of the Lord. क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की रिपोर्ट मानने को तैयार हैं। Because that cannot be seen or
touch, that is beyond your senses. क्योंकि वो रिपोर्ट ना देखी जा सकती है, ना छुई जा सकती है, वो आपकी ज्ञान इंद्रियों से बाहर है। That's why I want to give you in one scripture, and इसीलिए so मैं that you आपको understand. मैं आपको ये आयत देना चाहता हूँ आपको Church, समझे। I pray, I desire, I decree, I wish with all my heart that you will understand what faith is. मैं पूरे दिल से चाहता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझे विश्वास क्या है। As long as you're operating with your five senses, you are not operating with faith. जब तक आप जो दिखता है, समझ में आता है, उसके मुताबिक जी रहे हो, आप विश्वास में नहीं जी रहे हो। Amen? Because it's the evidence of those things which are not yet in the natural. क्योंकि विश्वास उन बातों का सबूत है जो अभी शारीरिक रूप में दिखाई नहीं देती। Amen? That means even when you feel like you're sick, you are choosing to believe that you are healed. You are choosing to believe a different report than what the doctors had told you. इसका मतलब अगर किसी को बीमार महसूस भी हो रहा हो या डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में जो लिख के दिया हो उसके विरोध में जो आप मानते हो कि मैं ऐसा हूं, वो विश्वास है। What the doctors have said, it's a fact. जो डॉक्टर्स ने कहा है वो एक तथ्य है। Are you hearing me, church? What the doctors have said, it's a fact. जो डॉक्टर्स ने लिखा है वो एक तथ्य है। What the Bible says is truth. जो बाइबल कह रही है वो सच है। The facts can change, but the truth will never change. क्योंकि तथ्य बदलते रहते हैं लेकिन सत्य कभी नहीं बदल सकता। Amen? That's why Jesus said, your word is the truth. इसीलिए यीशु ने कहा तेरा वचन सत्य है। That's why you can depend your life on it. इसी कारण अपनी जिंदगी को उसके वचन पे आप निर्भर कर सकते हो। We have so many testimonies. People went to doctor, they said cyst in uterus. Prayed, they went to doctor, no cyst. What happened? The facts can change. इतनी सारी गवाहियां हमारे बीच में हैं। कोई बहन डॉक्टर के पास गई, उसको बोला कि तुम्हारा यूट्रस में सिस्ट है। जब वो दोबारा जाके चेक कराया तो कोई सिस्ट नहीं था, क्योंकि तथ्य बदलते रह सकते हैं। That's why majority of church doesn't know what faith really is. इसीलिए ज्यादातर कलीसिया को समझ में नहीं आता कि विश्वास क्या चीज है। Amen? Are you getting what I'm saying? Okay, I want to show you some scripture. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आयत से। Romans chapter 8, we'll read from 6 to 8. रोमी 8 उसके 6 से 8 तक पढ़ेंगे हम। For to be carnally minded is death. क्योंकि शरीर की बातों पर मन लगाना मृत्यु है। Now the Bible, many people think carnally minded means sinful minded. और बहुत से लोग सोचते हैं कि जो शरीर की बात मतलब पाप के बारे में सोचते हैं। No, that's not what Bible says. बाइबल ये नहीं कह रही। Carnal mind simply means a mind that only believes what the mind can perceive by senses. लेकिन जो शरीर पर मन लगाना बाइबल कह रही है वो ये है जो हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस बात पर मन लगाना। That means, इसका मतलब church, are you alive? इसी आप जिंदा Are you हैं? hearing what I'm saying? सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा That हूँ? means, इसका मतलब if you live by your senses, अगर आप जो महसूस करते हैं उस पे जियोगे Satan can easily kill you. तो शैतान आराम से आपको मार सकता है। That's what faith. God provided faith to replace our senses. इसीलिए परमेश्वर ने विश्वास दे दिया ताकि अपने जो हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसकी जगह हम विश्वास I'll पे say it जिएं। again. God gave faith परमेश्वर ने विश्वास दिया to replace our senses. ताकि हमारी ज्ञानेंद्रियों की जगह हम उस पे जिए। So many people say faith is blind. बहुत से लोग कहते हैं विश्वास अंधा है, That person is stupid. वो व्यक्ति बेवकूफ है। Faith is not blind. विश्वास अंधा नहीं है। Faith sees beyond natural. विश्वास शरीर के परे देख सकता है जो शारीरिक में दिखाई नहीं देता। Faith has eyes. विश्वास की आंखें हैं। Faith has ears. विश्वास के कान हैं। Faith can touch. विश्वास छू सकता है। Faith can taste. विश्वास चख सकता है। Faith can feel. विश्वास महसूस कर सकता Are you है। getting what I'm saying? When God is saying we should not live by our natural senses, He is saying, I'm going to give you the senses of faith. परमेश्वर इसीलिए आपको वो ज्ञानेंद्रिय देता है विश्वास की, जिसके द्वारा आप जो नहीं दिखता उसको छू सके, महसूस कर सके। That's why Bible says God calls those things which are not as if they are. इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर उन बातों को जिनका वजूद ही नहीं है ऐसे बुलाता है मानो वो सामने रखी है। That means इसका मतलब God can see beyond natural. परमेश्वर शारीरिक चीजों के परे देख सकता है। And what Satan wants is, और जो शैतान चाहता है वो ये है, hear me carefully, ध्यान से सुनना, he wants you to be so consumed with your problem that you are not able to see beyond your problem.
वो चाहता है कि आपका पूरा ध्यान अपनी समस्याओं पे इतना ज्यादा हो कि अपनी समस्याओं से आगे आपको कुछ दिखाई ही ना दे। Amen? So any person who is sick, he has two reports. तो अगर कोई बीमार हो तो उसके पास दो रिपोर्ट्स है। One report is of a doctor एक रिपोर्ट एक डॉक्टर से है who is a human being, जो एक इंसान है, is as fragile as any other human being. वो वैसे ही गलती कर सकता है जैसे कोई भी इंसान गलती कर सकता है। There can be error in that report. उस रिपोर्ट में गलती हो सकती है। You don't know how well practiced that doctor is. आपको ये भी नहीं पता कि उस डॉक्टर ने कितने अच्छे से प्रैक्टिस की है। But this report लेकिन ये रिपोर्ट is from the doctor of doctors, ये उस डॉक्टर की है जो वैद्यों का वैद्य है, who is the creator, जो रचना करने वाला है, who is Jehovah Rapha, जो यहोवा राफा है, जो चंगा करने वाला and है, who cannot lie. जो झूठ नहीं बोल And his सकता। report says, और उसकी रिपोर्ट में ये लिखा by है, the stripes of Lord Jesus Christ of Nazareth, you are healed. कि यीशु नासरी के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। Amen. So your mind has to go under a training, तो आपके मन को, आपके दिमाग को एक प्रशिक्षण लेना है, and that training is और वो प्रशिक्षण ये that है I will not be moved by what I see. कि मैं इस बात से घबराऊंगा नहीं जो मैं देखता हूँ, I will not be moved by what I hear, मैं इस बात से घबराऊंगा नहीं जो मैं सुनता हूँ, but I will only be moved by what I believe in the Word of God. लेकिन मैं उसी बात पे डटा रहूंगा जो परमेश्वर का वचन मेरे लिए कहता है। If the Word of God says I am healed, अगर वचन कहता है मैं चंगा हूँ, then that means I am healed. तो इसका मतलब मैं चंगा हूँ। Whether I feel it or not, that does not matter. चाहे मुझे चंगा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। Amen. Are you getting what I'm saying? Faith gives you the ability to see beyond natural. विश्वास आपको ये क्षमता देता है कि आप शारीरिक दुनिया से आगे देख And सकें। Paul is saying, और पौलुस कह रहे in the हैं kingdom, राज्य में if you are carnally minded, if you are led by your senses, अगर आप शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, अगर अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिएंगे and that will produce death. तो वो मौत ले आएगा। Do you know there is one arena where Satan cannot function, and that is the arena of faith. एक क्षेत्र है जहां पर शैतान काम नहीं कर सकता और वो है विश्वास का क्षेत्र। That's why Satan is powerless against people of faith. इसीलिए शैतान जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनके विरोध में सफल नहीं हो रहता कभी भी। But what he does is, लेकिन वो ये करता है, he will come to you वो आपके पास आएगा and says, और कहेगा, look, देख you have problem in your stomach. तेरे पेट में दिक्कत हो रही है, You'll die young. तो जवानी में मर जाएगा। And you say, आप कहेंगे अरे तो ये है. हो तो ये दिक्कत। That's the power of suggestion. यही सुझाव की सामर्थ्य है, सुझाव में He शक्ति है। suggests वो things to you. आपको सुझाव देता है उल्टे पुल्टे, You believe it आपने उनको मान लिया because you can perceive it in the natural. क्योंकि आपको शरीर में वैसा लगता है। And that's how he can kill a believer. और यही तरीका है कि वो विश्वासी को मारता है। Guys, are you getting what I'm saying? Is this making sense to you? समझ में आ रहा है? That means इसका मतलब anybody who wants to walk in prosperity in this place. कौन अमीरी में जीना चाहता है यहाँ पे, जो ज्यादा आत्मिक नहीं है। Okay. Lord, there are some people who are not raising their hand. प्रभु कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए हुए। Now, yeah. That means you have to believe you are prosperous before prosperity hits your account. इसका मतलब आपको पहले ये मानना है कि आप अमीर हो, इससे पहले आपके अकाउंट में अमीरी दिखाई दे। भैया आपको पता है मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? आप बोले बैंक भी चार्ज मार रहा है लो बैलेंस से भी नीचे। That doesn't matter. उससे That फर्क नहीं doesn't पड़ता। matter. अकाउंट में क्या दिख रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। You have to believe it first and then the manifestation will come. पहले मान लो और तब दिखाई देगा। Amen? When Bible says we are kings, बाइबल कहती है हम राजा हैं। doesn't mean that an angel will come and give you a scepter. इसका मतलब ये नहीं कि एक स्वर्गदूत आके आपको राजदंड देगा। No, no, you have to believe it. आपको विश्वास करना है, You have to believe I'm a king. ये जान लेना है कि आप राजा हो। When you start believing you're a king, जब मान लोगे अपने दिल में कि आप राजा हो, that will manifest. आपकी जिंदगी में दिखाई दे जाएगा। Amen? Are you getting church what I'm saying? There were times in my life I was going through extreme, extraordinary pain.
मेरी जिंदगी में ऐसे समय थे जब मैं बहुत भयंकर दर्द से गुजर रहा था, And the only medicine that can work was the word. और केवल एक ही दवाई थी जो काम कर रही थी, वो थी परमेश्वर का वचन। The Bible says in Proverbs 4:20, "My son, pay attention to my word." नीति वचन 4:20 में उसका वचन कहता है, मेरे बेटे मेरी बात को ध्यान से सुन, Keep my word in the midst of your heart. मेरे वचन को अपने दिल की गहराई में संभाल कर रख। That's why stay away from people who speak death. इसीलिए उन लोगों से दूर रहो जो मौत बोलते हैं अपने मुंह से। Now doctor has said something to you, अब डॉक्टर ने कुछ बोला आपको, and then comes one of your relative. फिर आपके एक रिश्तेदार आते हैं, अरे सुना था शर्मा जी को भी यही हुआ था, 3 महीने में मर गए। Now you are reading the word. अब आप वचन पढ़ रहे हो, और पता है क्या, शर्मा जी भी बिलीवर थे। Now you're like, now all the hope is gone. अब जितना बचा कुछ विश्वास था, Because somebody came, क्योंकि कोई आया gave you a bad report. और एक बुरी खबर आपको दी। Become deaf to bad news. बुरी खबर के लिए बहरे बन जाओ। Guys, become deaf to bad news. बुरी खबर के लिए बहरे हो जाओ। It does not matter what is happening around you. The Bible says 1,000 will fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। बाइबल कहती है आपके बाईं और 1000 दाईं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन आपके पास कोई विपत्ति नहीं आएगी। Some people will come to me and say, but भैया वो शर्मा जी के साथ है। अरे शर्मा जी से हेवन में पूछेंगे कि उनके साथ हो, मुझे नहीं पता। But what the word says, it's true if you believe it. जो वचन कहता है वो सच है अगर आप मानोगे तो। Automatically the Bible would not be activated in your life. You have to believe the promises. अपने आप बाइबल किसी की जिंदगी में काम नहीं करेगी, आपको उनको मानना है। जो वायदे आपको दिए गए हैं उनको मान लो। It's a promise, ये वायदे हैं, but you have to possess the promise. लेकिन उन वायदों पे कब्जा करना आपकी जिम्मेदारी है। Amen? Guys, are you getting what I'm saying? So, you have to stay away from bad news. बुरी खबरों से दूर रहना जरूरी है आपके लिए। That's why a practical advice, एक सुझाव not देता only हूं, stay away from bad news, stay away from news. बुरी खबर से ही नहीं, जो खबरें आती है टीवी पे उससे भी दूर रहो। But some people say, फिर हमें पता कैसे चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है? अगर इतनी जागरूकता बाइबल के लिए होती ना कि बाइबल में क्या हो रहा है, सब some people like, हमें जानना है दुनिया में क्या हो रहा है। अरे होने तो दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। Amen? It's like, दुनिया में क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है। एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, नाम चेंज है, बाकी न्यूज वही है। भाई ने भाई को मार दिया, उसने उसको मार दिया, वो एक्सीडेंट में मर गया, वहाँ क्रैश हो गया, ये हो गया। इट्स अ बैड न्यूज। सिर्फ नाम बदल रहे हैं, खबर वही है और बुरी खबर ही है। बट वी हैव द बाइबल व्हिच इज द गुड न्यूज। लेकिन हमारे पास बाइबल है जो अच्छी खबर है। आमेन। व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड टाइम इन द गुड न्यूज? क्यों अच्छी खबर पे समय ना बिताएं? आमेन। सम पीपल आर लाइक, I don't have any newspaper in my मेरे घर पे अखबार नहीं आता। And usually if you ask, I don't have very general knowledge. और अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है दुनिया में। I don't want general knowledge. मुझे चाहिए ही नहीं है दुनिया का ज्ञान। Bible says as we grow in the knowledge of Him, grace and peace is multiplied in our life. बाइबल कहती Let's है, grow in the knowledge of Him. बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं तो अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है। उसके ज्ञान में बढ़े ना। Amen. You know Smith Wigglesworth, the great apostle of faith. स्मिथ विगलस्वर्थ को महान प्रेरित कहा जाता है विश्वास का। He had never allowed newspaper in his house. उन्होंने अपने घर में कभी अखबार घुसने ही नहीं दिया। One day a pastor came to his house एक बार एक पास्टर उनके घर आए and he had newspaper by और his उनके side. बगल में ऐसे अखबार था। And उन्होंने घंटी बजाई घर की। Smith Wigglesworth came outside. स्मिथ विगलस्वर्थ बाहर आए दरवाजा He खोल के। said, "Throw that news of devil outside my house. This is not allowed in my उन्होंने house." कहा शैतान की इस बुरी खबर को मेरे घर से बाहर फेंको, मेरे घर में नहीं आएगी। Some auntie will all the time watch Crime Patrol. कुछ आंटियां सारा समय क्राइम पेट्रोल देखती रहती हैं बैठ के। And then और फिर their son is late. उनका बेटा घर आया देर And से then they're like, कहाँ चला गया? तो वो घबराती हैं कुछ हो तो नहीं गया Why? बेटे को। क्यों? Because your mind is so consumed by bad news. क्योंकि आपका दिमाग बुरी खबरों से इतना सना हुआ है। और सारे एपिसोड याद आने लग गए। For God's sake, don't watch Crime Patrol. Why do you want to watch Crime Patrol? क्यों देखने ये सारे
चीजें जो बुरी हैं। You know, watch Avengers movie. कुछ देखना अच्छा देखना तो एवेंजर्स की मूवी देख लो। Amen. Where you see that good triumphs over evil. जहाँ आप देखते हैं अच्छाई बुराई को हरा रही है, No matter how powerful the evil is. चाहे बुरा कितना भी सामर्थ्य लगता हो। Amen. I'm telling it to you from experience. मैं One अनुभव से- pastor's wife, we had gone to a place to preach, and one pastor's wife, she would watch Crime Patrol so much. After 6 p.m., she didn't want to go out. She said, no. मैं अनुभव से बता रहा हूँ ये बात। एक पासवान की पत्नी है, वो क्राइम पेट्रोल बहुत देखती थी, तो जब उनके पति प्रचार के लिए जाते तो वो कहती कि मैं 6 बजे के बाद कहीं नहीं जाऊंगी। Amen. Guys, are you getting what I'm saying? See, God wants to replace our eyesight with godly imaginations. परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी आंखों को, हमारी दृष्टि को बदल दे परमेश्वर की कल्पनाओं के साथ। That's why Paul says we don't walk by sight. इसीलिए पौलुस कहते हैं जो दिखता है उसके भरोसे हम नहीं चलते। Amen. Whether what you're seeing is against you, चाहे जो आपको दिख रहा है वो आपके विरोध में है, still फिर भी you hold on. आप पकड़े रहो। You know, Paul gives an example of faith as a shield. He's giving an example of a Roman soldier. पौलुस जब उदाहरण दे रहे हैं तो वो एक रोमी सैनिक का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं जो विश्वास है वो ढाल की तरह है। And it was not like the shield of Captain America. और वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसा नहीं था, It was like a big shield वो that used to एक cover them. बहुत बड़ी चादर जैसा होता था जो उनको पूरे ढांप लेती And थी। what he's saying is, और वो क्या कह रहे हैं, the soldiers who were cowards, they used to throw off their shields and run away. जो सैनिक डरपोक थे वो अपनी ढाल फेंकते थे और भाग जाते थे। Hebrews 10:35. इब्रानी 10 इसका 35। Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. इसीलिए अपनी हिम्मत, अपने हियाव को ना छोड़ना, उसका बड़ा प्रतिफल है। I told you faith has an attitude. मैंने बताया था विश्वास की एक जीवन शैली, एक सोच विचार होता है। Okay, so for example, उदाहरण के लिए Bible tells us to hold on to what God has given us. बाइबल कहती है पकड़ के रखो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उस बात को। Amen. So for example, you are standing at the door of your house. For उदाहरण example, के लिए आप अपने this- घर के दरवाजे पे खड़े this हैं। is the door, okay? ये दरवाजा है घर का। A person of faith विश्वास करने वाला एक व्यक्ति stands like this. वो यूं खड़ा रहता है। A Roman soldier. एक रोमी सैनिक, These soldiers, they had the shield of faith and they used to resist the enemy. They were, Bible says, when you have done everything, stand and withstand. और रोमी सैनिक वो दम लगा करके तैयार रहता था अपने दुश्मन को रोकने के लिए। और बाइबल कहती है जब तुमने सब कुछ कर लिया तो डटे रहो, जिस बात को तुमने कहा है उस पर डटे रहो। Some people will say for 2 minutes and then they'll be tired. They'll say, अरे कुछ नहीं हो रहा. कुछ लोग 2 मिनट के लिए किसी बात को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, फिर कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो। Bible says, do not cast away your confidence. बाइबल कहती है अपने हियाव को, जिस बात को तुमने थामा है उसको, उस पे उससे हिलो नहीं। Bible says, hold fast to your confession. बाइबल कहती है जो तुम अपने मुंह से कह रहे हो अपने अंगीकार को पकड़े रहो, Even if you don't see it. चाहे वो नजर ना भी आ रहा हो। Okay? If you can thank God अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हो before you have seen it, अपने चमत्कार को देखने से पहले, you will see it. तो देखेगा ही दिखेगा। You didn't hear what what I आपने said. सुना नहीं मैंने क्या I कहा? said if you can thank God मैंने कहा अगर आप धन्यवाद कर सकते हो परमेश्वर को before you have seen a miracle, अपने चमत्कार को देखने से you पहले, will surely see it. तो निश्चय ही उसको पूरा होते हुए देखोगे। Amen. Let me tell you a secret of multiplication. मैं बढ़ोतरी का एक रहस्य बता देता हूँ। And then worship team, can you come? Let me tell you a secret of multiplication. मैं बढ़ोतरी का रहस्य बता देता हूँ आपको। Doesn't matter how much is your salary. फर्क नहीं पड़ता आपकी तनख्वाह कितनी है। How many people want an increase in their salary? कितने लोग अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी चाहते हैं? Some people don't want. Lord, कुछ लोग को नहीं चाहिए। प्रभु, it's a simple principle. एक साधारण सा सिद्धांत है। Let me tell you, there are two kind of people in the kingdom. राज्य में 2 तरह के लोग हैं। There are people who are thankful, लोग हैं जो खुश, जो धन्यवादित लोग हैं, and there are people who are unthankful. और वो लोग भी हैं जो धन्यवादित नहीं है जिंदगी के लिए। Me and Sam, we were going near a mall. We saw people in this hot weather sleeping on the side of the road. How much can we thank God for? हम लोग मॉल जा रहे थे, रास्ते में देखा एक आदमी सड़क पे इस गर्मी में सो रहा था।
कितना कुछ है हमारे पास प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। Some people say, क्या दिया प्रभु ने मुझे, आज तक क्या दिया? Unthankfulness is like cancer. धन्यवादहीन होना कैंसर की तरह है। Bible says, bless the Lord, O my soul, and do not forget His benefits. बाइबल कहती है परमेश्वर को धन्य कहे मेरे प्राण और उसके उपकारों को मत भूलना। You know, we have a bad habit. हमारी एक बुरी आदत है, पता है, We forget the good things very soon. हम अच्छी चीजें जल्दी भूल जाते हैं जो मिली होंगी। क्या क्या प्रभु ने मिलने आज तक? You know, Israelites, they are crying, प्रभु हमें बाहर निकाल, यहाँ से बाहर निकाल, बाहर निकाल. तो पहले इजरायली लोग रोते थे जब बंधुआई में थे कि यहाँ से निकालो प्रभु निकालो। And then God took them out of और प्रभु ने Egypt. उनको मिस्र से निकाल दिया And then they are crying, प्रभु हमें वापस भेजिए, बेकार आ गए हम बाहर. और फिर बोल रहे कि वापस जाना है। And Bible says the destroyer destroyed them, Satan destroyed them because they were grumblers and complainers. और बाइबल कहती है नाश करने वाले ने उनको इसलिए नाश किया क्योंकि वो कुड़कुड़ाने वाले लोग। Let me tell you $1 million advice. मैं $1 करोड़ की एडवाइस दे रहा हूँ। Stay away from grumblers and complainers. They are going to kill your destiny. कुड़कुड़ाने वाले न्याय करने वाले लोगों से दूर रहो, आपके जीवन के उद्देश्य का गला घोट सकते हैं। You know, they'll go to any office. They'll go to वो office. ऑफिस जाएंगे, अरे खाना अच्छा नहीं है इस ऑफिस का, अरे एसी ठंडा नहीं करता, अरे बॉस ऐसा है, कंप्यूटर स्लो है. You know, they will not be thankful that God gave them a job. वो जिंदगी They'll में always try to find problems in that place. वो जिंदगी में किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं होंगे, उनको हर जगह दिक्कत दिखाई देगी। इसलिए भी खुश नहीं कि प्रभु ने उनको नौकरी दी करने के लिए, उनको वहां पे भी दिक्कत दिखेगी। If they'll go to heaven, they'll have a problem in heaven as well. अगर स्वर्ग गलती से चलेगा तो वहां पे भी उनको दिक्कत होगी। बताओ, इतना बड़ा सिंहासन बनाए क्या जरूरत थी? बताओ, इतना बड़ा सिंहासन ना प्रभु, बताओ, चटाई में बैठ जाता प्रभु. So stay away from those people. तो ऐसे लोगों से दूर रहो। Guys, we are laughing, but I'm telling you a serious thing. हम हंस रहे हैं लेकिन ये गंभीर बात है। The complainers will kill your destiny. जो लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, हर बात में शिकायतें करते रहते हैं, वो आपके जीवन के उद्देश्य का गला घोट सकते हैं। But let me tell you a secret of multiplication. लेकिन from मैं the आपको Bible. रहस्य बताता हूँ बढ़ोतरी। Everything about your life will multiply. आपके जीवन की हर एक अच्छी बात बढ़ती चली You want to जाएगी। know that? Simple. आसान है, Thankfulness. धन्यवाद देना शुरू करो। Some people are always complaining. मेरी सैलरी बहुत नहीं, मेरी सैलरी बहुत नहीं, मेरी सैलरी बहुत नहीं. Come on, guys, man. कुछ लोग हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, पैसा कम मिलता है, तनख्वाह कम मिलती है। Let me tell you something. Some people are not liking me right now. You can see the silence. Let me tell you something. There are 10,000 people, 10,000 लोग, women and children not added, औरतें और बच्चे उसमें नहीं गिने गए थे, and और they have not eaten food for 3 days. उन्होंने 3 दिन से नहीं खाया था। Now imagine the situation right now. अब आज के समय में कल्पना करके देखो, 10,000 people, 10,000 पुरुष की गिनती है, and a boy gives a tiffin to Jesus, and it has 5 bread and 2 fish. और एक छोटा लड़का अपना नाश्ता देता है यीशु को जिसमें 5 रोटी हैं और 2 मछली हैं। Now, if it would have gone to Mr. X, complainer, you say, इसमें क्या होगा? 10,000 लोग खा लेंगे क्या इसमें? तू ही खा ले. अगर कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति होता तो वो ऐसी प्रतिक्रिया करता। But what did Jesus do? लेकिन यीशु ने क्या किया? He took it उसने उस नाश्ते का डब्बा लिया and lifted it up and उसको स्वर्ग की ओर thanked the उठाया। Father for a small provision. और पिता का धन्यवाद किया उस जो कुछ उपलब्ध था उस समय में उसके लिए। Amen. And you know what happened? और पता क्या हुआ? It multiplied. वो बढ़ना शुरू हो गया It multiplied. और बढ़ता चला गया। When you are thankful for the job that you have, जब आप धन्यवाद है तो उस नौकरी के लिए The जो आपको house दी that गई you है, live in. जो घर में आप रहते हो, the business that you have, जो व्यवसाय आपके पास है, the clothes that you wear, जो the कपड़े parents आप that you पहनते have, the हो, food that जो you eat. खाना आप खाते हो, You know what will happen? पता है क्या होगा? Man, multiplication. बढ़ता चला It's a जाएगा। biblical principle. ये बाइबल का सिद्धांत है। What is David doing? दाऊद क्या कर रहा था? David was a man who had the attitude of gratitude. दाऊद वो व्यक्ति था जो धन्यवादित हृदय लेकर चलता था। That's why even when his heart was not feeling like, he's like, oh my soul, he's talking to himself. Come on, you can talk to yourself. Come on, say, oh my soul. इसीलिए जब उसको नहीं महसूस हो रहा तो वो अपने दिल को आदेश देता है, आप भी करें, ए मेरे दिल Bless the Lord. प्रभु को धन्य कहे And don't forget his benefits. और उसके उपकारों को मत भूल।
Oh my soul, ए मेरे मन, bless his holy name, परमेश्वर के नाम की महिमा कर, for he heals all your diseases क्योंकि उसने तेरे सारे रोगों को चंगा किया है and he forgives you of all your iniquities. और उसने तेरे सारे अपराधों को तुझे क्षमा किया है। Maybe your salary is less, maybe it's not enough. हो सकता है किसी की तनख्वाह कम हो और पूरी ना पड़ती हो, But look at that person who is sleeping at the roadside. लेकिन उस आदमी को देखो जो सड़क के किनारे सो रहा है गर्मी में। People will die for a job like yours. लोग आप जैसी नौकरी के लिए मरने को तैयार हो जाएंगे। But if we start saying, Father, लेकिन अगर हम इतना कहना शुरू करें, पिता धन्यवाद, thank you for this job. जो कुछ आपने At किया, least this job gives me a 3-time meal. ये नौकरी मुझे 3 वक्त की रोटी तो देती This job gives me a roof I can live under. है, ये नौकरी मुझे छत देती है जिसके नीचे मैं रह Lord, सकता I am thankful for what you have given हूं। me. पिता मैं धन्यवादित हूँ जो आपने मुझे दिया। You know उसके what लिए। happens? आपको पता है क्या होता है? Multiplication. बढ़ोतरी। But when you live grumbling and complaining, लेकिन जब कुड़कुड़ाते हुए हर समय रोते हुए जीते हो, what you have will be taken from you. जो है आपके पास वो ले Because you're not happy with it. क्योंकि आप खुश नहीं हो उसमें। You know, imagine I give a toffee to Eliana. आप for कल्पना example. करो मैंने एलियाना को एक टॉफी She's दी, like, ये क्या टॉफी है? कोई टॉफी होती है? कितनी बेकार टॉफी है? मैं कहूँ दे वापस। हम आप एक दूसरी वो कह रही है, प्लीज मेरे को दे टॉफी। मैं कहूँगा ले बेटा। If you honor what God gives you, He will give you more. अगर आप आदर करो उस बात का जो प्रभु ने आपको दिया है तो आपको और But देगा। if you dishonor and complain and grumble what He has given you, लेकिन अगर what आप- you has, enemy will steal. No, God will not take it away from you. The Satan will take it away. लेकिन अगर आप निरादर करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है तो दुश्मन आपसे वो ले लेगा, परमेश्वर नहीं वापस छीनता। Amen. And I'm telling you, if you are thankful, अगर आप धन्यवादित see हो, that's the secret in the kingdom. God is a God of humble beginnings. यही राज्य का यही रहस्य है, परमेश्वर छोटी शुरुआतों से बड़ा करता है। Guys, you didn't hear what I said. आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? God is a God of humble beginnings. परमेश्वर छोटी शुरुआत से बड़ा करता है सब कुछ। Amen. Some people want to start huge, कुछ लोग बड़े स्तर पे शुरू करना and चाहते then it हैं goes. Zoom. और वो ऐसे आते हैं और ऐसे वापस जाते हैं। No, you have to understand. God gives anything that He has planned for your destiny in the form of a seed to you. ये समझो परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन के लिए रखा है वो बीज के रूप में आपको देता The है। business that you have. वो व्यवसाय जो आपके Maybe पास you'll start it from your house. है, हो सकता है अपने घर पे शुरू करो। Don't think मेरी पहली बिल्डिंग DLF होगी, मैं मैनेजर की तरह बैठूंगा, 50 लोग मेरे आगे। That's not it happen. That's not the way it happens. ये मत सोचना कि डीएलएफ की बिल्डिंग में आपका दफ्तर होगा अपना, ऐसे शुरुआत नहीं होगी। Are you getting what I'm saying? Bible says, don't despise the day of humble beginnings. बाइबल कहती है छोटी शुरुआत जो है उसको तुच्छ मत समझना, Because that small seed won't remain small if you're thankful. क्योंकि वो छोटा बीज छोटा नहीं रह जाएगा कुछ समय बाद, And God gives that seed to you. और परमेश्वर आपको वो बीज देता है And then He sees, और फिर देखता है are you faithful? क्या आप in that विश्वास little? योग्य हो उस छोटे में। If you are faithful, अगर thankful in that little will start growing. अगर उस छोटे में आप विश्वास योग्य हो तो वो बढ़ता चला जाएगा, अगर आप धन्यवादित हो वो बढ़ता चला जाएगा। Amen? Man, I read about all the heroes that you have, whether in the world, whether in the kingdom, all the great men which you think are great, they all had humble beginnings. जितने भी महान लोगों की जिंदगी आप देखोगे, किसी भी क्षेत्र में वो महान हो, अगर आप उनके जीवन को देखोगे तो उन्होंने छोटे में शुरुआत की। Guys, make a commitment today. आज इस बात को ठान लो, We will not use our mouth to grumble and complain. हम अपने मुंह का इस्तेमाल कुड़कुड़ाने के लिए और शिकायतें लगाने के लिए नहीं करेंगे। Amen? Some people say, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, मैं क्या करूं? कुछ लोग कहेंगे नौकरी भी नहीं है, मैं क्या करूं? सांस ले सकते हैं आप? इसके लिए थैंक्स करो प्रभु, because every breath you're taking is a gift from God. क्योंकि हर एक सांस परमेश्वर की ओर से तोहफा है आपके लिए। Amen. There are a billion reasons you can thank God for, करोड़ों कारण हैं आपके पास धन्यवाद करने के लिए पिता को, but Satan will make you focus on those things which you do not have, लेकिन शैतान आपका पूरा ध्यान उन बातों पे ले आएगा जो आपके पास नहीं है, and you will feel sad. ताकि आप दुखी महसूस करो। Amen. Guys, is there any person in this room who will say, I don't have anything that I can be thankful to God for? क्या यहाँ पे कोई भी है जो ये कह सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए? There are a billion reasons. करोड़ों कारण है हर And you एक know के what? पास, You start with one. और आप एक से शुरू करो, एक We'll do कारण it. से। We'll do it after this sermon. हम समय के बात करेंगे, We'll practice हम being प्रैक्टिस thankful. करेंगे कि कैसे धन्यवाद दे सकते हैं। You start
thinking about that little things you can thank God for. उन छोटी बातों के लिए सोचना शुरू करो जिसके लिए Maybe a परमेश्वर को धन्यवाद 3-time कर सकते हो। Sorry। 3-time meal. हो सकता है 3 बार रोटी खा Your लेते हैं। parents, आपके माता the पिता, friend that you have. आपके दोस्त आपके पास हैं, The amazing house you live in. जिस घर में रहते हो, The amazing pastors you have. जो अच्छे पास्टर हैं आपके पास। So, and when you start thanking God like that, और जब आप प्रभु का धन्यवाद करोगे, it will start overflowing from your heart, and then you will know, man, I am so blessed. I am so blessed. I have a billion reasons to thank God for. तो अपने दिल से आपका दिल धन्यवाद करने लगेगा और आपको पता लगेगा करोड़ों कारण है आपके पास धन्यवाद करने के लिए। Let me tell you an antidote to depression. मैं तनाव से मुक्त रहने का एक दवाई बताता हूँ। Money back guarantee. पैसा वापसी की गारंटी है। Raman will give you the money. पैसे रमन देगा इस बार। A thankful person cannot live in depression. एक धन्यवादित व्यक्ति तनाव में जी ही नहीं पाएगा। You didn't hear what I said. आपने सुना नहीं? Practice it and see it for yourself. करके देख लो खुद। Go to somebody say, किसी के पास जाओ। यार कितना डिप्रेस्ड हूँ यार मैं, प्रभु ने इतना कुछ दिया है मुझे यार, I am so thankful. You cannot be thankful and be depressed. धन्यवादित होने के साथ साथ तनाव में आप नहीं रह And सकते। depression has become a fashion symbol. Everyone is depressed. आजकल तनाव मार्केट में बहुत हर चल कोई रहा है। डिप्रेस्ड है। सब डिप्रेस्ड है, मार्केट में सब डिप्रेस्ड है आजकल। सारे दोस्त, तू भी डिप्रेस्ड, तू भी चल, मैं भी डिप्रेस्ड हूँ। What? No man. We are not depressed. Bible says His blessing will come pressed down, shaken together, running over. मैं बाइबल कहती है उसकी आशीषें हम पर दबा के उंडेली जाएंगे। Amen. Nobody can press us because Christ is in us. कोई हमें दबा नहीं सकता तनाव से क्योंकि मसीह हम में रहता है। Amen. So start living a life of thankfulness from today. इसलिए धन्यवाद देने वाली जिंदगी जीना शुरू I can give you guarantee. Next year, if your salary is not increased, come to me. We'll pray together. मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ अगले साल तक आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो मेरे पास आना प्रार्थना करने के साथ। Amen. Guarantee. It's in the Bible. और बाइबल में है ये बात। A thankful man will abound with blessings. एक धन्यवादित मनुष्य आशीषों की बहुत आयत में जिएगा। Just think about naturally. शारीरिक रूप से सोच के देख लो। A father goes to his 4 children एक बाप अपने 4 बच्चों के पास जाता है and he just has 1 toffee. और उसके पास एक ही टॉफी है And there are 4 kids. और 4 बच्चे हैं Now 3 are grumbling. और 3 कुड़कुड़ा रहे They're हैं। like, अरे एक टॉफी में क्या होगा? हम 4 हैं, टॉफी 1 है. And then one kid says, Daddy, thank you so much for the toffee. Guess who's getting the toffee? तो 3 कुड़कुड़ा रहे और कहता पापा धन्यवाद एक टॉफी तो लाए। Guess who's getting the किसको toffee? मिलेगी टॉफी? If that dad is me, I'll eat the toffee. But I want to tell you guys from today, stay away from grumblers. मैं ये कह रहा हूँ आज से कुड़कुड़ाने वालों से दूर Make a रहो। commitment. ये ठान लो अपने दिल में आज, Because that grumbling and complaining is like a virus. क्योंकि कुड़कुड़ाना जो है ना वो एक वायरस की तरह है। It killed majority of Israelites in the wilderness. इतने सारे इजरायली जंगल में कुड़कुड़ाने की वजह से मर गए। But when you live in thankfulness, लेकिन जब धन्यवादित जियोगे everything about your life will multiply. आपके जीवन का जो कुछ अच्छा है वो बढ़ जाएगा। Amen.